Hello, dear students. Today in this session, we are going to continue with our discussion on vector and 3D solution, all the session part 2. Okay. And this is my introduction as well. And I have teaching experience of more than 15 years for teaching IIT JEE aspirants. And I was a leading higher grade tutor at Pearson Education, USA. Okay. So without wasting any time, we shall continue with the discussion. This is the first question on the go. And what does this question say is let A vector equals I cap plus alpha j cap plus beta k cap, alpha beta belongs to real. Let a vector b vector be such that the angle between a vector and b vector is pi by 4 and mod of b square equal to 6. If a dot b equal to 3 root 2, then find the value of this alpha square plus beta square into mod of a vector cross b vector का square is equal to. ओके बेटा, तो इसमें हमें मॉड बी स्क्वायर दे रखा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर पाई बाय 4 दे रखा है एंड ए डॉट बी दे रखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी फाइंड मॉड ऑफ from mod of b square a dot b. Okay, if a dot b is given, if we take the modulus of this a dot b, then this is mod a mod b, and of course cos theta का modulus is equal to 3 root 2. And what if we do the square of it all? So यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर 6 है, और एंगल उनके बीच में कितना दे रखा है, पाई बाय 4. कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 इंटू हाफ हो जाएगा वो, तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर है ना. तो दिस इज 18 एंड दिस टर्न आउट टू बी मॉड ए स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी 6. मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर 6 आ जाएगा. So from here we can get mod of a का square, and mod of b का square is already given as 6. And what is a cross b के mod का square now? तो mod of a cross b का square, this can be easily found by using the Lagrange identity. This is mod a square mod b square minus a dot b का square. What is mod a square? 6. Mod b square 6 minus a dot b का square, that is again 18. So this will turn out to be only 18. Now the left thing is alpha square plus beta square. For that we can consider this mod of a square, and a vector is also given to us over the top as I cap plus alpha j cap plus beta k cap. So यहाँ से हम उसका मॉडुलस कर लेंगे I cap plus alpha j cap plus beta k cap का, तो 1 plus alpha square plus beta square आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर, हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये 6 आ जाएगा. तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5. ओके, एंड नाउ वी जस्ट नीड टू प्लग द वैल्यूज ओवर हियर, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 है, एंड मॉड ऑफ अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर का स्क्वायर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है. So the answer turns out to be 90. It was fairly an easy question, just the awareness of Lagrange identity should be there, and one can easily do this. So let's go to the next question. Next question. In the next question, we can see let a vector and b vector be two vectors such that mod of b vector equal to 1 and b cross a का मॉडुलस क्या दे रखा है 2, then b cross a minus b के मॉड का स्क्वायर. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में वी कैन डू डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ. ए डॉट ए हम जानते हैं ना, ए डॉट इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर होता है, तो बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी, यही उसका मॉड का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ इफ वी ओपन दिस बाय मल्टीप्लाइंग टर्म बाय टर्म, तो बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए, मॉड ऑफ बी क्रॉस ए का स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी के साथ होगा. तो ऑफ कोर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर रिपीट होते हैं तो वो जीरो हो जाता है, एंड सिमिलरली बी डॉट बी क्रॉस ए वो भी जीरो आ जाएगा, और प्लस मॉड बी का स्क्वायर आ जाएगा. सो नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ बी क्रॉस ए का स्क्वायर, दैट विल बी 4, क्योंकि वो 2 दे रखा है हमें, एंड मॉड बी कितना दे रखा है हमें, मॉड बी कितना दे रखा है हमें वहां पे 1 दे रखा है. ठीक है,
So it will be 4 plus 1. Answer is 5. So this is again a fairly easy question and students could have easily done this. Alright, तो next question देख रहे हैं हम. It says A vector equal to 3 I cap plus J cap minus 2K cap, B vector equal to 4I plus J plus 7K, and C vector equal to I minus 3J plus 4K be 3 vector. If a vector, not vectors, P vector satisfy P cross B equal to C cross B and P dot A equal to 0, then P dot I minus J minus K is equal to. Okay, so first information we get from here, that is P cross B minus C cross P equals null vector. All right. So this is P vector minus C vector क्रॉस विद बी वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अब अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस P माइनस सी का अगर B के साथ क्रॉस नल आ रहा है तो ये वेक्टर पैरेलल होने चाहिए. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि P वेक्टर और कोलिनियर यू कैन से इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, फॉर सम लैम्डा नॉन जीरो स्केलर है ना. सो P वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. अब यहाँ पे P वेक्टर हमें दे रखा है, हमें P वेक्टर का कोई यहाँ पे आइडिया नहीं है, बट हमें सी वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर भी दे रखा है. सी वेक्टर हमें दिख रहा है ऊपर आई कैप माइनस 3J प्लस 4K, और बी वेक्टर भी यहाँ पे हमें दिख रहा है. तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं बी को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके. तो सी वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, उधर से 4 है, तो 1 प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा हमारे पास आई कैप. एंड इधर से सी का -3 और उधर से 1 के साथ लैम्डा प्लस -3 प्लस लैम्डा जे कैप आ जाएगा हमारे पास. एंड प्लस इधर से 4 और प्लस उधर से 7 के साथ लैम्डा, 7 लैम्डा के कैप आ जाएगा. सो दिस इज ऑल इक्वल टू पी वेक्टर. पी वेक्टर को इतना बना के भी रख लेते हैं. सेकेंड इंफॉर्मेशन वी कैन फर्निश फ्रॉम हियर. व्हाट इज इट सेइंग पी डॉट ए इक्वल्स 0. सो इसी पी वेक्टर का जो हमने अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा है, इस पी वेक्टर का इस्तेमाल हम पी डॉट ए इक्वल टू 0 में कर लेते हैं. जहाँ पे ए वेक्टर हमें दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा लेंगे हम. तो 3 कॉम्पोनेंट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस -2 टाइम्स 4 प्लस 7 lambda equals 0. So what does it turn out to be? Let's see. This is 3 minus 3 0 and -8. This is -8 plus 12 lambda. 3 into 4 12 lambda plus 1 13 lambda minus 14 lambda. तो माइनस लैम्डा इक्वल 0. तो यहाँ से लैम्डा आ रहा है हमारे पास -8. आई थिंक दैट्स इट. यहाँ से हमारा पी वेक्टर कंसल्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. पी वेक्टर क्या बन जाएगा, 1 -32, तो -31 आई कैप एंड -3 -8 -11 जे कैप, 4 -56 -52 के कैप. वन कैन इजीली सी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो तो आसान है, पर वेक्टर थोड़ा सा अजीब बन रहा है. यहाँ से बच्चों को डर लग रहा हो सकता है एग्जाम में. और यहाँ से हम पी वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस के कैप, बस अब ये लास्ट स्टेप है बेटा, ये हमें बस कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है, ये बना के दिखाना है अभी. तो -31 के साथ वहां पे 1 आया तो -31, -11 के साथ -1 तो +11, -52 -1 तो +52. नाउ व्हाट इज 52 प्लस 11? दैट इज 63, and 63 minus 31 is 32. So 32 would have been the answer to this question. So again, not that difficult question, just a little bit lengthy in calculation. Otherwise, an easy question I can say. Okay, let's go to the next question. It says A vector and B vector be two vectors such that mod of A vector equal to 1, mod of B vector equal to 4, and A dot B equal to 2. If C vector equal to 2A cross B minus 3B vector and the angle between B vector and C vector is alpha, then 192 sin square alpha is equal to. अगेन मॉड दे रखे हैं हमें, ए डॉट बी दे रखा है, सी वेक्टर भी दे रखा है, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी हमें क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है. तो यहाँ पे हम इस सी वेक्टर को कंसीडर करके शुरू कर सकते हैं. हमें जो सबसे पहले दे रखा है सी वेक्टर इक्वल्स 2A क्रॉस बी
-3b, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी हमें क्या दे रखा है, इट इज एल। सो व्हाट वी कैन डू इज ए डॉट बी भी हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे मॉड सी का स्क्वायर भी करके देख सकते हैं। मॉड सी का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम खुद के साथ ही हम डॉट कर लेंगे, 2a क्रॉस b - 3b वेक्टर को इसी के साथ हम डॉट करके देख सकते हैं। तो उससे हमारे पास क्या आता है, मॉड सी का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, सो दिस इज 2a क्रॉस b - 3b डॉट विद इटसेल्फ, डॉट विद 2a क्रॉस b - 3b। सो 2a क्रॉस b का 2a क्रॉस b के साथ अगर हम डॉट करें, टर्म टर्म टू टर्म डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा, स्केलर तो बाहर ही हो जाएगा, 4 मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर। और इसी को अगर 3b के साथ करेंगे तो 2 × 3 - 6 पर a क्रॉस b का b के साथ डॉट करेंगे वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही b का a क्रॉस b a वाले का इस टर्म के साथ करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, पर इसका जब पीछे वाले के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स मॉड b का स्क्वायर। सो a क्रॉस b का हमारे पास वैल्यू हम निकाल सकते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी लगा के, क्योंकि यहाँ पे हमारे को a डॉट b दे रखा है, a डॉट b कितना दे रखा है 2, और मॉड a मॉड b दे रखा है, तो 4 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो इट विल बी 1 × 16 माइनस a डॉट b का स्क्वायर विच इज 4, और प्लस 9 टाइम्स मॉड b का स्क्वायर, मॉड b का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज 16 - 4, 12 × 4 48 प्लस 144, so this turns out to be 192। और इट, तो दिस इज मॉड सी का स्क्वायर, तो मॉड सी हमारे पास स्क्वायर रूट 192 आ जाएगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज, हमें यहाँ पे एंगल बिटवीन बी एंड सी दे रखा है अल्फा, तो वी कैन डू बी डॉट सी, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा 192 साइन स्क्वायर अल्फा। सो फ्रॉम देयर वी कैन डू बी डॉट सी, इसी सी वेक्टर का के साथ हम b का डॉट करके देखते हैं फ्रॉम द लेफ्ट, एंड दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b का अगर b के साथ डॉट करेंगे वो जीरो आ जाएगा, -3b डॉट b कितना बन जाएगा, मॉड b का स्क्वायर, मॉड b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि मॉड b 4 है। तो यस, तो दिस इज मॉड b इंटू मॉड c इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स -48। ओके, सो मॉड b कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो वो इसे कट करके यहाँ पे हम 12 बना देते हैं, एंड मॉड सी रूट 192 है, तो कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा 12 ओवर, मॉड सी की वैल्यू -12 ओवर रूट 192। तो वी कैन इजीली फाइंड फ्रॉम हियर रूट 192, 48 × 4 होता है, तो 48 × 4, 16 × 3 होता है, यस, तो 16 और 4, तो 16 × 3 × 4, 64 × 3 भी 192 हम कह सकते थे, तो 64 का 8 बाहर आ जाएगा, तो वी कैन डू ओवर हियर cos अल्फा इज -12 ओवर 8 √3, 4243 -3 √2, तो -√3/2, तो ये आ जाएगा -√3/2। यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, और 192 साइन स्क्वायर हमें क्या चाहिए, अल्फा, तो ये आ जाएगा 192 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्योंकि 3/4 है ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 48। सो आंसर आ गया 48। अगेन अ लिटिल बिट कैलकुलेशन का है यहाँ पे, अदरवाइज क्वेश्चन क्या है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। let a vector equal to this and b vector equal to this and c vector equal to a cross b cross I and then again cross I, then c dot this is equal to c। यहाँ पे थोड़ा परसिवरेंस का क्वेश्चन है बेसिकली, ये आपको थोड़ा ध्यान से करना है। आप एक तो आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, a क्रॉस b क्रॉस I करने के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, a क्रॉस b क्रॉस विद c
ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी होता है। और आप यहाँ पे सिंपली ए क्रॉस बी करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरे मेथड से दिखाने लगा हूँ विदाउट यूजिंग द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदरवाइज उससे भी ये इजीली हो जाएगा। तो आप ए क्रॉस बी अगर यहाँ पे सबसे पहले करके देखें तो आप इजीली यहाँ से भी कर सकते हैं। आई जे के -5 1 -3, अगेन थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन में ये, तो 1 2 -4, बट इजी है, आराम से हो जाएगा अगर ध्यान से करेंगे। तो आई कैप -4 -6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और माइनस जे कैप 20, दिस इज 20 + 3 23, एंड प्लस के कैप हमारे पास कितना आ जाएगा, -10 -1 -11। अब इस ए क्रॉस बी का आई के साथ क्रॉस करना है एट द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो इसका आई के साथ जब क्रॉस करेंगे तो हमारा आई क्रॉस आई तो जीरो ही हो जाएगा, जे क्रॉस आई। अब हम जानते हैं क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट की है ना प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो आई क्रॉस जे के होता है। तो जे क्रॉस आई क्या होता है, -k। तो पर माइनस तो पहले लगा है, तो के कैप के साथ आ जाएगा 23, और के क्रॉस आई ये बिल्कुल ठीक है, तो प्लस जे कैप के साथ आ जाएगा -11। अब फिर से जो ये रिजल्ट आया हमारे पास, इस पूरे के पूरे रिजल्ट को हमने किसके साथ क्रॉस करना है, आई कैप के साथ। तो इस पूरे को फिर से हम क्या करेंगे, आई कैप के साथ क्रॉस, क्योंकि उन्होंने एक और दे रखा है आई कैप बाहर। और फिर के क्रॉस आई कितना आएगा, जैसा हमने अभी भी बोला, वो जे कैप आ जाएगा। तो दिस इज जे कैप इंटू 23, एंड जे क्रॉस आई तो फिर उल्टा चलने वाली बात है, क्योंकि जे के बाद के आता है तो माइनस के आना चाहिए, और पर माइनस वहां पे भी है, तो के कैप के साथ क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब एक बार जस्ट और हमें करना होगा, क्योंकि एक और आई कैप दे रखा है वहां पे इन दी एंड। तो ये जो नतीजा आया, ये पूरे को भी हमें आई कैप के साथ क्या करना है, क्रॉस करना है। बस दैट्स इट, फिर वो आंसर आ जाएगा हमारा सी वेक्टर। सो जे क्रॉस आई, जे के बाद तो के आता है, ये पीछे जाने वाली बात होगी, तो माइनस के कैप के साथ 23, के क्रॉस आई ये बिल्कुल ठीक है, उसके आगे ही जा रहे हैं हम, तो जे आएगा +11 जे कैप। बस अब इसको सी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर है जिसे मैं एंड में बॉक्स कर रहा हूँ, इसको हमें -i + j + k के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देयरफॉर सी डॉट -i + j + k, और यही है हमारा सी वेक्टर। ऑलराइट, तो इसको कंपोनेंट वाइज करके देखेंगे। आई कैप वाला कंपोनेंट तो है नहीं, जे वाला है, तो 11, और साथ में क्या आ रहा है फिर के साथ -23, तो -23 आंसर आ जाएगा -12। सो अ वेरी फेयरली इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ करने वाला क्वेश्चन था, और आई थिंक बच्चों को अगर पेशेंस दिखाया होगा तो ये क्वेश्चन इजीली बनाया होगा। तो कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, कंसीडर अ ट्राइंगल एबी सी वेयर ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस पॉइंट, एंड इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मीट द लाइन बीसी एट डी, देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर एडी वेक्टर ऑन एसी वेक्टर इज। तो अ गुड क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ पे एक बार ये ट्राइंगल बना के देख लेना चाहिए, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमें डॉट प्रोडक्ट से पता होना चाहिए। सो दिस इज 1 2 3 एंड बी -2 8 0, and this point is C 3 6 7. So consider a triangle, and if the angle bisector of angle BAC, this angle bisector meets the BC at D, then the length of the projection of AD on AC. अब लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ AD on AC की अगर बात करें हम सबसे पहले, सो दैट इज AD डॉट AC अपॉन मॉड ऑफ AC वेक्टर, एंड इसका भी मॉडुलस। इस चीज को हम इन दी एंड ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ए सी वेक्टर तो इजीली देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट और सी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट से बन जाएगा। इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द ए डी वेक्टर, एंड फॉर दैट वी नीड द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। उसके लिए एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसकी साइड्स को वो कंटेन करता है, अपने एंगल की साइड्स को, है ना। तो ए बी और ए सी की लेंथ हम निकाल लेंगे सबसे पहले। ए बी की लेंथ कितनी आ रही है, -2 -1 का स्क्वायर 9, एंड प्लस हमें दिख रहा है 8 -2 36। तो 9 + 36 प्लस फिर से 9, तो ये अंडर रूट में हमारे पास आ रहा है 45 + 9 54, एंड इधर से कितना आ रहा है अंडर रूट में 4 प्लस 6 -2 का स्क्वायर 16, एंड 7 -3 का स्क्वायर फिर से हमारे पास कितना आ रहा है 16। तो लेट मी सी, यहाँ पे हमारे पास कोई गलती तो नहीं है।
-2 -3 -2 -1, ये कितना आ रहा है? -2 -1 3, 9 एंड 36 एंड 3। देयर इज अ एरर रिपोर्टिंग इन द क्वेश्चन एक्चुअली। यहाँ पे हमने 1 2 3 मिसप्रिंट कर दिया है। दिस इज 1 3 2। सो द टॉप पॉइंट नीड टू बी चेंज्ड। जस्ट अ मिनट। इसको हम कर देंगे यहाँ पे 1 3 2। 1 3 2। क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 3 2 दे रखा था, जिस कारण से हमारी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे ठीक अभी नहीं बन रही थी। तो हम इस कैलकुलेशन को ठीक कर लेते हैं। लेट्स मेक द करेक्ट कैलकुलेशन। नाउ दिस इज -2 -1 का स्क्वायर 3 एंड +8 - 3 25 हो जाएगा। और प्लस कितना आ जाएगा? 0 -2 4। या तो दिस इज 3 का स्क्वायर 9, तो ये अंडर रूट में क्या बन जाएगा सारा? 38। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास अंडर रूट में कितना आ रहा है? 4 +9 +25 √38। तो वी कैन इजीली सी ए बी ए सी के इक्वल है, तो बी डी भी डी सी के इक्वल आ जाएगा। तो डी इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर ए बी ए सी के इक्वल आ रहा है तो बी डी भी डी सी के इक्वल आ जाएगा ना। तो डी मिड पॉइंट आ गया। डी मिड पॉइंट आने से हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/2 एंड दिस विल बी 14/2 7 एंड दिस विल बी 7/2। नाउ वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस ए। So this is -12 I and +4 j, and what is this? 7/2 -2। तो 7/2 minus 7 -4 3/2, 3/2 k। And what is AC vector now? AC vector is 2I +3j +5k। Now we can easily find this projection length, and this is AD dot AC। इनको बस अब डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। दिस विल बी -1 +12 एंड 3/2 इंटू 515/2 अपॉन अंडर रूट में हमें इनको ऐड करना है। 1/4 +16, 1/4 +3/4 तो 1 बन जाएगा, +16 कितना बन जाएगा? 17। फिर अंडर रूट में 4 +9 13 +25 38। ओके। So what does it turn out to be? This is 11. 2 into 11 is 22 plus 30, 15 37. 37 by, let me check with this, 37 by √17 into √38। ये हमने यहाँ पे सिर्फ रूट मॉड ए सी करना था, तो √17 यहाँ पे हमने नहीं लिखना है। तो ऑफ कोर्स ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 जो है वहां से कहाँ आ जाएगा? नीचे। जो ये 15/2 वाला 2 है, 37/2 का 2 जो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। लेट मी रेज दिस √17 फर्स्ट। या तो वो 2 नीचे आ जाएगा, तो आंसर कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन बन जाएगा। तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी इसमें टफ नहीं है। तो क्वेश्चन बस ध्यान से करना था, और हमें यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। तो ये हमारा आई थिंक इसका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सो या तो इसमें हम देखते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इक्वल टू दिस बी थ्री वेक्टर सच दैट बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए। if the angle between the vector c vector and the vector this is theta, then the greatest integer less than or equal to tan square theta। तो ये 1 फरवरी का लास्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज के सेशन का है। तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, तो बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए दे रखा है। इस इंफॉर्मेशन को हमें सबसे पहले यूटिलाइज करना है। यहाँ पे बी क्रॉस ए -c क्रॉस ए इक्वल्स 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बी -c वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर क्या आ जाएगा? नल वेक्टर आएगा ऑफ कोर्स।
तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या आ जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर, को लिनियरिटी का कंसेप्ट फॉर नॉन जीरो स्केलर लैम्डा के लिए। तो बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। ओके, यहाँ पे हम बी वेक्टर की वैल्यू प्लग कर देंगे। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -i +8j +2k। एंड सी वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है 4i +c2j +c3k और लैम्डा ए। तो इसको हम टर्म कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। 4 के साथ वहां पे लैम्डा ए, तो लैम्डा उधर वन है, तो 4 प्लस लैम्डा आई कैप +c2 प्लस जे कैप का उधर वन है अगेन लैम्डा जे कैप प्लस इधर से C3, के कैप का कोएफिशिएंट ई वेक्टर में वन है, तो प्लस लैम्डा के कैप। तो यहाँ से कंपैरिजन से हम इजीली निकाल सकते हैं, और आईजे के नॉन कोलिनियर है ये भी कह सकते हैं, तो इजीली कंपेयर हो जाएंगे कोएफिशिएंट। 4 प्लस लैम्डा कितना आ गया, -1। तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -5। सिमिलरली वी विल फाइंड सी टू प्लस लैम्डा, जिसमें लैम्डा -5 अब हम प्लग कर सकते हैं, और उसको इक्वल इक्वल किसके कर देंगे, 8 के कर देंगे। 8 नहीं है, -8 है ना, बी सी वेक्टर में जो, बी वेक्टर में जो है ये -8 है। सो इसको -8 के इक्वेट अगर हम कर देते हैं, तो यहाँ पे C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, इट टर्न्स आउट टू बी -3। ये C2 की वैल्यू आ गई -3। एंड सिमिलरली C3 प्लस लैम्डा, तो C3 लैम्डा की वैल्यू -5 इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, तो C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो ये सारी वैल्यूज आते ही हमारा सी वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड दिस वेक्टर, अनदर वेक्टर जो हमें यहाँ पे दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 3i + 4j + k थीटा। तो सी वेक्टर हमारा क्या बना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिख लेते हैं, 4i, C2 कितना आया -3j, C3 आया 7k, दैट्स इट। तो इसके बाद इसका अगर हम डॉट कर दें, इसी वेक्टर का अगर हम डॉट कर दें, 3i + 4j + के साथ, तो और उस वेक्टर का नाम, हम दूसरे वाले वेक्टर का नाम लेट से ए बी तो हो रखा है, लेट से दिस वेक्टर इज हम डी वेक्टर। तो सी वेक्टर को अगर हमने डी वेक्टर के साथ डॉट करा है, सी वेक्टर को डी वेक्टर के साथ डॉट करा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। तो इनके बीच में एंगल इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, थीटा दे रखा है, तो मॉड सी मॉड डी कॉस थीटा। तो ये कितना बन गया, 4 3 = 12 एंड -3 × -4 अगेन -12 +7। सो कॉस थीटा यहाँ से कितना आ रहा है, 7 अपॉन वट इज मॉडुलस ऑफ सी नाउ, दैट इज √16 + 9 25 + 49 74। वट इज मॉडुलस ऑफ डी, अंडर रूट में 9 + 16 25 + 1 26। तो यहाँ से ये हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें यहाँ से टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा निकालने का हम यहाँ पे मेथड क्या डिवाइस कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। उन्होंने टेन स्क्वायर थीटा पूछा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा से हम 49/74 × 26 कर सकते हैं, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके हम साइन स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। एंड साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करके हमारे पास टेन स्क्वायर आ जाएगा। तो जो टेन स्क्वायर आएगा, वो हमारा कुछ कैलकुलेशन करके जो हमने उसका जेंट निकाल के देखा, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 38 पॉइंट समथिंग। एंड फिर उसका जेंट करने के बाद जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 38। ये एंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों आप थोड़ा ध्यान से कर सकते हैं। जस्ट सिंपली कॉस स्क्वायर के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करके साइन स्क्वायर कर लेंगे, फिर टेन स्क्वायर आ जाएगा। फिर टेन स्क्वायर की वैल्यू अगेन ऐसी बड़ी सी ही आएगी, उसको डिवाइड करना होगा। इसमें बस एंड में ये कैलकुलेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, जिसमें आपका हार्डली 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, वो आप जरा करके देख लीजिए। और आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका फाइनली 38 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए। इस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन इन्होंने एंड में थोड़ा सा लंबा कर दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन ये भी इजी था। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर एंड 3D सॉल्यूशन, एंड आई होप यू रियली लाइक्ड इट। एंड if you want to know any explanation or any concept, so you can comment, and in the description I have written all,
and you can just leave your comments, and we will surely entertain that. And all the best for your JE preparation. Okay.